Good evening, students. Welcome again in my YouTube channel. Dear students, this is the class 12th chemistry. Students, we are discussing in previous video that the topic that is the aldehydes, ketones, and carboxylic acid. There are some few important reactions we want to discuss. That one is the, dear students, the reaction that is the, we have completed the aldol condensation reaction and cross aldol condensation reaction. We have completed. These are two important reactions. And after this, students, we discuss the most important reaction, that is the Claisen split reaction or Claisen condensation. Claisen, C-L-A-I-S-E-N, Claisen, S-C-H-M-I-D-T reaction, or Claisen condensation, C-L-A-I-S-E-N, C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N. What is the name of this reaction? What is the process of this reaction? Students, the reaction of condensation between an aromatic aldehyde or ketone and an aliphatic aldehydes or ketone in presence of dilute alkali to form alpha beta unsaturated compound is called Claisen condensation. Listen once again. Claisen condensation means the reaction of condensation between an aromatic aldehydes or ketone and an aliphatic aldehyde or ketone in presence of dilute alkali to form alpha beta unsaturated compound is called Claisen condensation. Dear students, Claisen condensation means जब एक aliphatic aldehyde या ketone aromatic aldehyde या ketone से किसी भी alkali के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक, जैसे देखिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं. दिस इज द बेंजल्डिहाइड, benzene ring, single bond C, double bond O, single bond H. This is the benzaldehyde. You know that benzaldehyde is the aromatic aldehyde, and this is acetaldehyde, CH3CHO. Sorry, CH3COCH3. This is the acetone. This is the acetone, CH3, C double bond O, CH3. Dear students, this is aliphatic ketone. Then what happened? This hydrogen moved to this position and this CH2 add to this position. Then what happened? This is the benzene ring, we draw again. Here O moved to this position, then is the OH, and this double bond converted into single bond, and this bond moved to here and add to the CH2. So single bond CH2 CO CH3. Okay. Dear students, the name of this compound is 1 2 3 4. 4-phenyl. This is phenyl and this is the OH, means hydroxy, and this is ketone. And after this it heat again. Then what happened? This one hydrogen goes to OH and form the water molecule. If one hydrogen liberated, then here the double bond, means this bond moved to this position. Then what happened? Benzene ring, CH double bond CH, single bond C double bond O, single bond CH3. So students, this is aromatic aldehyde and this is aliphatic ketone. आपने स्टेटमेंट लिखा था कि aliphatic aldehyde या ketone जब aromatic aldehyde या ketone से alkali के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं Claisen condensation. अब जब इसको अगेन हीट करोगे तो ये आपका क्या बन गया? बेंजीन रिंग के बाद CS डबल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3. अब इसका नेम लिखना हो तो 1 2 3 4 4-phenyl but 1 2 3 in 2-on. 1 2 3 4 4 नंबर फिनाइल ग्रुप है. 4-phenyl but 3 in 2-on. Okay, so this is the Claisen condensation. Okay,
Students, if aldehydes means except formaldehyde. You know that aldehyde means compound contain the CHO group. तो aldehyde means formaldehyde के अलावा आप जानते हो बहुत सारे aldehydes होते हैं. फर्स्ट मेंबर ऑफ aldehyde कौन सा होता है? formaldehyde. एल्डिहाइड्स यानी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा सारे एल्डिहाइड्स अगर अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन क्या करते हैं? एल्डिहाइड अमोनिया एडॉक्स. तो नोट्स करके आप राइट करेंगे एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म एल्डिहाइड अमोनिया एडॉक्स. ADDUCTS एडॉक्स. सपोज दैट दिस इज द एस्टोल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O C NH3. स्टूडेंट्स अगर NH3 लिखेगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन इस O के साथ मूव करके OH हो गया, यहां बचा NH2 इस सिंगल बॉन्ड से नीचे आ गया. अब अगेन अगर इसको डीसे स्टूडेंट्स हीट करेंगे तो क्या होगा? यहां से देखिए ये OH और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके स्टूडेंट्स क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल. यहां से लिबरेट क्या कर गया? वाटर. अब बचा क्या? दिस. और यहां से देखिए अगर ये एक हाइड्रोजन यहां चला गया, बचा क्या स्टूडेंट्स? NH. और ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड NH हो गया. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज एसिटल्डीन. तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज द आइमाइन. जब कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? आइमाइन. IMINE. बहुत सारे एग्जाम में शॉर्ट नोट आया व्हाट इज द आइमाइंस. तो आप लिखोगे कि व्हेन aldehydes except of formaldehyde reacts with ammonia then form a compound that is known as the imine. अब एसिटल्डिहाइड से आपने रिएक्शन किया तो ये हो जाएगा एसिटल्डीमाइन. आप जिससे भी कराओगे, अगर मान लीजिए आप प्रोपेन से कराओगे प्रोपेनल्डिहाइड से तो आपका हो जाएगा प्रोपेनल डीअमाइन. मींस जो आपका लास्ट होगा क्या लग जाएगा? IMINE. तो मींस एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट. ये हुआ. इसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या बन गया? OH. और ये NH2 नीचे आ गया. इसको हीट करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाया, यहां बचा NH आपका बन गया एसिटल्डिहाइड आइमाइन. तो आपसे एग्जाम अगर पूछा जाता है व्हाट इज द आइमाइन तो आप लिखेंगे कि आइमाइन इज द प्रोडक्ट व्हेन एसिटल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया the produced product that is known as the imine. Okay students, the second note आपने कहा कि except formaldehyde. अगर formaldehyde के अलावा जितने भी एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं? आइमाइन. बट formaldehyde अगर अमोनिया से रिएक्ट करे क्या बनाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, formaldehyde reacts with ammonia to form hexamethylene tetraamine. Hexamethylene tetraamine which is known as Europropene. हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन का जो मार्केट नेम है दैट इज नोन एज द यूरोट्रोपिन. UROTROPIN. यूरोट्रोपिन. इट इज यूज्ड टू ट्रीट यूरिनरी इंफेक्शंस. ये एक मेडिसिन होती है यूरोट्रोपिन जो कि यूरिनरी इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. Urinary means generally you know that there are some person which is infected urine just like the with urine with the pustules which come and other substance become blood is coming. मीन्स अगर यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, उस यूरिन के साथ आपका मवाद या पस आ रहा है या ब्लड आ रहा है या किसी तरह के इन्फेक्शन है तो ये यूरोट्रोपिन का हम जनरली क्या करते हैं? यूज करते हैं. रिएक्शन देखिए क्या है. यू नो दैट HCHO, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड 6HCHO reacts with 4NH3 then form CH2 whole 6H4 plus 6 water molecule. CH2 whole 6H4. देखिए this is the hexa. This is hexa. 6 means hexa. CH2 means methylene. Hexamethylene tetraamine. Here the N. This is NH4. Tetra. Here the tetraamine NH4. ठीक है. तो दिस इज हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन. ओके, तो हेक्सामेथाइलिन C2H6 NH6 लाइक दिस. C2H6 दिस. लिसन करो. हेक्सा मींस होता है 6. ठीक है. तो हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन दिस इज हियर वी राइट N नॉट H. दिस टेट्रा. हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन दिस इज नोन एज अ यूरोट्रोपिन and it is used to treat the urinary infections.
यूरिन में, पेशाब में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, मवाद आना, पस आना या ब्लड आना, इस सब में आपका ये यूरिन के रूप में यूज किया जाता है। अब इस CH2 6NH4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन 4, 1 2 3 4 नाइट्रोजन हो गया। CH2 कितने टाइम, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन और हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन। अब स्टूडेंट्स, अगर यही हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन अंडर कंडीशंस में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया जाता है तो मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव बनता है, दैट इज नोन एज द आरडीएक्स। क्या बनता है, आरडीएक्स। कैसे बनेगा, ये आपका यूरोट्रोपिन है, CH2 होल 6N4 अंडर कंडीशन HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका फॉर्मेशन होगा साइक्लो ट्राई मेथाइलिन ट्राई नाइट्रोएमाइन। लिसन वंस अगेन, साइक्लो ट्राई मेथाइलिन ट्राई नाइट्रोएमाइन और द अदर नेम दैट इज साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट। ओके, it is also known as RDX. RDX, what the full form of RDX? Research and Development Explosive. Okay, so this is the product, means if the eurotropin reacts with the nitric acid in the under condition then form a very powerful explosive, you know that this is the RDX. And the chemical name of RDX, that is the cyclotrimethylene trinitroamine or the cyclonite, NITE. This is the CH2 N NO2 NO2 CH2 CH2 N NO2. This is the compound which is known as the RDX, and the chemical name, that is the cyclotrimethylene nitroamine or cyclonite. What the full form of RDX? RDX means research and डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आप जानते होंगे जितने भी आतंकवादी होते हैं वो जनरली इसी आरडीएक्स का यूज करते हैं। आरडीएक्स इज द पावरफुल एक्सप्लोसिव, मींस जनरली इसको अगर पहाड़ को उड़ाना हो या बहुत सारी एरिया को उड़ा देना हो, किसी का पता नहीं चलेगा, दिस इज नोन एज द आरडीएक्स। ओके, तो ऑल ऑफ यू वी कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट। Dear students, we start the next topic, means we completed the reactions. The next reaction that is the, in your exam generally asked that what is the Schiff base? Schiff base, SCHIFFBASE. What is the Schiff base? Students, when the aldehyde reacts with primary amine, then form a product that is known as the Schiff base. Listen once again. When aldehyde reacts with primary amine, then form a product by elimination of water, that is known as the Schiff base, SCHIFFBASE. अब यहाँ कोई एल्डिहाइड लेंगे, RCHO, R की जगह आप CH3CHO या कोई भी ले सकते हैं। प्राइमरी एमाइन का मीन्स RNH2, R मतलब यहाँ पे कोई होगा CH3NH2, C2H5NH2 कोई भी होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इससे रिएक्ट करके वाटर बना लिया, ठीक। अब वाटर बनाने के बाद यहाँ क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड NR, दिस इज नोन एज द Schiff base, और ये वाटर निकल गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द Schiff base, तो देन यू राइट दैट व्हेन द एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द प्राइमरी अमाइन देन फॉर्म अ प्रोडक्ट बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज द Schiff base, ठीक। अब आप यहाँ कोई भी एल्डिहाइड ले लो, मान लीजिए CH3CHO लोगे, यहाँ सबको दैट CH3NH2 लोगे तो ये वाटर बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N CH3, जो भी R एल्काइल ग्रुप लेंगे आपका वो होता जाएगा प्लस वाटर निकल जाएगा, ठीक। दिस इज द Schiff base। अगर आपसे पूछा था व्हाट इज द Schiff base, तो आप लिखेंगे व्हेन द एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द प्राइमरी अमाइन देन फॉर्म अ प्रोडक्ट बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज द Schiff base। फिर आप रिएक्शन ले लेंगे, क्या, RCHO प्लस H2NR गिव्स आउट RCH डबल बॉन्ड NR प्लस वाटर, ठीक। कैसे हुआ, कोई भी RCHO एल्डिहाइड है, H2NR लेंगे, H2O रिएक्ट करके वाटर बना लिया, बचा क्या, RCH डबल बॉन्ड NR, दिस इज नोन एज द Schiff base। ओके, सो स्टूडेंट्स वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन वी डिस्कस द टॉपिक दैट इज द phenols, then told that
The one most important question will ask in exam that the compare the acidic nature of phenols. ये क्वेश्चन इसमें जरूर आता है, तो ये टॉपिक हमने बताया था कभी हम सिंगल वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो ऑल ऑफ यू सी. Actually students, phenols are more acidic than alcohols. फिनॉल जो होता है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है. ऐसा क्यों? क्वेश्चन आपका आएगा कि व्हाई द फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. ठीक, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली फिनॉल जो होता है, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन इथेनॉल और अल्कोहल. दिस इज ड्यू टू रीजन दैट फिनॉक्साइड आयन लेफ्ट आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम फिनॉल. देखिए आप जानते होंगे फिनॉल में ये आपका OH फिनॉल होता है. अगर यहां से ये वो लूज करेगा तो वो लूज करने के बाद यहाँ जो आयन बनेगा वो क्या कहलाएगा? फिनॉक्साइड आयन. तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो ये फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा प्रोटॉन लूज करने के बाद इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. किसके कारण बनता है स्टूडेंट्स? रेजोनेंस के कारण बनता है. बट व्हाइल alkoxide ion left after loss of a proton from alcohol is not stabilized by resonance. अल्कोहल जनरली ROH अल्कोहल है, इसमें से जब प्रोटॉन लूज होगा तो ये एल्कोक्साइड आयन बनेगा. ये एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता है. तो आपने यही लिखा, अगर आपसे आएगा क्वेश्चन व्हाई द फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, देन यू राइट दैट फिनॉल्स आर मोर acidic than ethanol or alcohol. This is due to reason that phenoxide ion left after loss of a proton from phenol is stabilized by resonance, while alkoxide ion left after loss of a proton from alcohol is not stabilized by resonance. Okay, you know that this is the alcohol, sorry, phenol, benzene ring ऊपर OH. स्टूडेंट्स आप जानते होंगे O की वैलेंसी, O के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से एक तो आपका शेयर यहाँ हो गया, एक यहाँ बचा कितना? 4. तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने अपर साइड में रख दिया और 2 यहाँ पर. अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करके यहाँ पर आएंगे तो बॉन्ड कैसा हो गया? डबल. देखिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके नीचे आए तो बॉन्ड कैसा होगा स्टूडेंट्स? डबल. और जब डबल होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव. तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपने रिप्रेजेंट किया था, 2 2 4. 2 में से जब इधर 2 आके यहाँ डबल बॉन्ड हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, अब क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड यहाँ डबल होगा तो ये बॉन्ड मूव करके इस पोजीशन पे आएगा. मींस ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स कहाँ गए? यहाँ पर. और इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आया. अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करके यहाँ पे आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कन्वर्ट किसमें होंगे? डबल बॉन्ड में. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसा हो गया? डबल. और जब डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ होगा तो जो यहाँ का डबल बॉन्ड है ये मूव करके कहाँ आएगा? यहाँ पर. तो जब यहाँ का बॉन्ड मूव करके यहाँ आया तो इस पर इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? डबल. और इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ. अगेन स्टूडेंट्स क्या होगा, ये बॉन्ड मूव करके आएगा यहाँ. तो जब ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड मूव करके जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर हो गया नेगेटिव. एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन. अब स्टूडेंट्स यही इलेक्ट्रॉन मूव करके फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पर कैसा हो गया? डबल बॉन्ड. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड इस साइड से रोटेट था, जबकि इसमें डबल बॉन्ड किस साइड से हो गया? इस साइड से हो गया. तो इसी को क्या कहते हैं? रेजोनेंस. मींस बॉन्ड रोटेशन ऑन दिस डायरेक्शन एंड हियर द बॉन्ड रोटेशन इन दिस डायरेक्शन. कैसे हुआ? बॉन्ड मूव करके ऐसे रोटेट, यहाँ पर ये हुआ, रोटेट किया, रोटेट करते ये आ गया. तो जो ये फिनॉक्साइड आयन, जब हाइड्रोजन यहाँ से लूज होगा तो जो फिनॉक्साइड आयन बना वो फिनॉक्साइड आयन किससे बन रहा है? बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन. जब ये प्रोटॉन लॉस करेगा तो किससे थ्रू बनता है? रेजोनेंस के थ्रू. तो फिनॉल में रेजोनेंस होता है जबकि अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता है, इसीलिए फिनॉल जो है मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू अल्कोहल. ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो आप पहले सेंटेंस राइट करके बाद स्ट्रक्चर जरूर देंगे. क्या लिखेंगे? फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल. दिस इज ड्यू टू रीजन दैट फिनॉक्साइड आयन left after loss of a proton after phenol is stabilized by resonance,
while alkoxide ion left after loss of a proton from alcohol is not stabilized by resonance, then you give the proper structure of this. Maybe all of you understand. ठीक, अब आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए होंगे इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए. फिनॉल में आपका पैरानाइट्रोफिनॉल भी हो सकता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल भी हो सकता है, मेटानाइट्रोफिनॉल भी हो सकता है और केवल फिनॉल हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, paranitrophenol is more acidic than orthonitrophenol, is more acidic than metanitrophenol, is more acidic than phenol. Means आर्थो, पैरा और मेटानाइट्रोफिनॉल में फिनॉल सबसे लेस एसिडिक होता है और सबसे मोर एसिडिक कौन सा होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल. तो पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल इज मोर फिनॉल. ओके, द सेकेंड, यू नो दैट क्रिसोल, क्रिसोल को आप जानते होंगे, फिनॉल के बाद अगर CH3 लगा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH के बाद CH3 लगा होता है, दैट इज क्रिसोल. आपको बताया गया था. ठीक है, अगर देखिए मेटा क्रिसोल भी हो सकता है, पैरा क्रिसोल भी हो सकता है और आर्थो क्रिसोल भी हो सकता है. तो इस कंडीशन में फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे लेस मेटा क्रिसोल होगा, उससे कम पैरा क्रिसोल होगा और सबसे कम क्या होगा? ऑर्थो क्रिसोल होगा. ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जरा इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा. क्वेश्चन है phenol is a less acidic than, this is important question, many times it is caused that phenol is less acidic than, phenol less acidic होगा किससे? पहला ऑप्शन है इथेनॉल, सेकंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड थर्ड है ऑर्थोमिथाइल फिनॉल एंड नेक्स्ट है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल. लिसन स्टूडेंट्स, phenol is less acidic than first option ethanol, second orthonitrophenol, third orthomethylphenol and fourth orthomethoxyphenol. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने यहां ऑर्डर देखा, इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है, और अभी आपने लिखा कि अल्कोहल फिनॉल से लेस एसिडिक होता है. फिनॉल आर मोर एसिडिक, यानी फिनॉल ज्यादा होता है, अल्कोहल क्या होता है? लेस होता है. तो इसका मतलब आपसे पूछा फिनॉल इज लेस है फिनॉल, तो फिनॉल इससे क्या होता है? ज्यादा होता है, इसका मतलब ये गलत है. आर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखिए स्टूडेंट्स, आर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब क्या होगा कि फिनॉल से, देखिए फिनॉल इज लेस, इसका मतलब फिनॉल इससे क्या होगा? लेस होगा. तो योर ऑप्शन दिस इज करेक्ट, means orthonitrophenol is less acidic than phenol. So your option that is the orthonitrophenol is correct. The last question that is which is most acidic. ये जो ऑप्शंस हमने दिया इसमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर इसमें पूछ दिया कि क्यों ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इससे फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. अब जरा आइए यहाँ पर आपसे पूछा गया विच इज मोस्ट एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक होता है? पहला है बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा है साइक्लोहेक्सेनॉल, तीसरा है फिनॉल और चौथा है क्लोरोफिनॉल. देखिए मेटाक्लोरोफिनॉल. एक आपका क्या है? कहा पूछा गया विच इज मोस्ट एसिडिक? बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, नेक्स्ट ऑप्शन फिनॉल एंड नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ है मेटाक्लोरोफिनॉल. स्टूडेंट्स देखिए इसमें ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है, अल्कोहल आपका लेस एसिडिक होता है. आपसे पूछा मोस्ट एसिडिक कौन है, तो देखिए यहां पर ये क्लोरो भी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, और अभी आपने कहा है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है? इंक्रीज करता है. तो इसका मतलब मेटाक्लोरोफिनॉल इज द मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल, यानी जितने इसमें दिए गए कौन कौन सा ऑप्शन है? फेनाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, थर्ड आपका है फिनॉल एंड फोर्थ ऑप्शन है मेटाक्लोरोफिनॉल. तो मेटाक्लोरोफिनॉल में क्लोरो जो आपका है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण ये एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ठीक, तो स्टूडेंट्स in previous videos and in also in the community I have posted some notes in the community, so all of you see in the community and also find the notes from this, and after all you see all these video, aldehydes and ketone is the most important chapter, so all of you see this video
and also find the notes in my community channel. Okay, so all of you take serious this chapter because this is the most important chapter. So all of you care this chapter. In next video I upload the amines chapter. So this is also most important chapter. So all of you see this video carefully, and once remind that aldehyde, ketones and carboxylic acid is most important chapter because it carry the 9 mark questions in board exam. इस चैप्टर से 9 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे. सो ऑल ऑफ यू प्रिपेयर दिस चैप्टर, सी माय ऑल वीडियोस एंड आल्सो take the notes in the community channel. So all of you take serious. Goodbye bye. Take care. Thank you.